Today's topic is General Ayub Khan and its time period is 1958 to 1969. Today I'll give you a review of General Ayub Khan's time period. इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है introduction. So I'll give you information about his life. ठीक है? You can use this information which I'm going to provide you for answering 4-mark question. यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि who was General Ayub Khan, तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो for answering this question. Because I have compiled information related to his early life and then the professional life. So in this under introduction, I'm discussing with you that he was born Northwest Frontier Province and his date of birth is 1907 and he died in 1974. So I'm writing it in bracket. He was educated at Aligarh College. Aligarh College, आप सबको पता होगा कि Sir Syed established this college और you have already read about it कि आप यहाँ पर prominent leaders जो हैं, they got education from this institution. Then you can see that he got commissioned as army officer in 1928. इसमें आपको पता चल रहा होगा कि this was the time period of British rule in the subcontinent. So before independence, he got commissioned in army. He fought against the Japanese in Burma in World War II. इसके बाद हम देखते हैं कि after partition यानी पाकिस्तान की creation के बाद in 1951 he became the first Pakistani commander in chief. कमांडर इन चीफ जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट डे के अंदर जो है ये ऑफिस जो है वो खत्म कर दिया गया है और इस वक्त हम उसको आर्मी चीफ कहते हैं. On 7th October 1958 he took charge as chief martial law administrator. So he was first chief martial law administrator as well as first chief commander in chief. After passing 20 days, on 27 October 1958, he forced Iskandar Mirza to resign and take over the government. It means that he became the president of Pakistan. So ये तो information थी उनकी life के बारे में जो हमने 4-mark question mostly पूछा जाता है, who was General Ayub Khan. So आप इस information को use कर सकते हैं. Then comes on political role of Ayub Khan. यानी सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस कर रही थी अयूब खान गवर्नमेंट व्हेन ही टुक ओवर द रूल. सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से हमने प्रीवियस लेसन में आपको जब मैं रिकैप दे रही थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि बिकॉज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट जो है वो इट इफेक्टेड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. बिकॉज 1947 टिल 1957 यानी 10 years के टाइम पीरियड के अंदर 7 governments had changed. It means that no prime minister completed their tenure. इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी वजह क्या थी, यानी बेसिकली देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियंस. इसको हम आइंदा जो है हमारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर भी ऐड करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड हम इस अपनी डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे. नंबर 2 प्रॉब्लम वाज इकोनॉमिक क्राइसिस. वी ऑल नो दैट इफ देयर इज इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री तो हमें it's understood that we have faced the economic crisis. अब इकोनॉमिक क्राइसिस के रिजल्ट के तौर पे जो प्रॉब्लम्स कॉमन पाकिस्तानीज को फेस करने पड़े थे वो थे लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, राइजिंग प्राइसेस, शॉर्टेज ऑफ फूड, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन. It means that there was a lot of problem for the common Pakistanis during this time period. Number 3 problem. मिस इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो मतलब है वहाँ के बांग्लादेश में भी था ना जो उस वक्त बेस्ट था. जी बेटा, इसकी अभी मैं आपके साथ इसके बारे में भी बात करूंगी. Political immaturity as well.
because if we see that there is a frequent changes in government, there must be political immaturity because they did not find any time to mature themselves, right? जैसे हमने पहले डिस्कशन के अंदर बात की थी कि इंटरप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है they disturb the government. तो जाहिर है कि political immaturity we can see during this time period, or when we compare the politicians with the disciplined organization of armed forces, definitely we will give the credit to the organized organization. और इसी परसेप्शन की वजह से जो मिलिट्री कमांड थी, they started to think that we should take over the government to keep the state intact, right? और इसके बाद हम जो इसी व्यू को आगे हमने जो कंसोलिडेट किया वो है इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ. सो यहाँ मैं आपसे रीजंस ऑफ मार्शल लॉ के बारे में भी थोड़ा सा एक रिव्यू आपको दे देती हूँ, बिकॉज वी मोस्टली डिस्कस इंटरनल रीजंस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ एक एक्सटर्नल रीजन भी शेयर करूंगी. द मिलिट्री टेक ओवर इन इजिप्ट, the time is July 1952 and Iraq in July 1958. इसका मतलब ये है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज थे उस टाइम के अंदर they also the military takeover was seen in those countries as well, and they were looking very successful. That is why we have our Pakistan Army also have this perception that the mess created by the politician should be cleaned up by the military. और इसी की वजह से हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा invited Ayub Khan to impose martial law, and Ayub Khan became the chief martial law administrator. और इसके सिर्फ 20 डेज के बाद ही टेक ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल. अब अयूब खान का प्रेसिडेंट बनने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये था कि ही इशूड एब्डो. एब्डो के बारे में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज एब्डो, 4 मार्क क्वेश्चन होता है. अब you can use this information for answering this question. अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि what does EBDO stand for. EBDO का मतलब है Elective Bodies Disqualification Order. अब EBDO की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी what is EBDO? इसमें ये है कि anyone accused of corruption or improper behavior could choose between either a trial or retirement from public office. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी elective member या official member, if they will be accused of corruption या misbehavior के उनके अंदर charges होंगे उनके ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रायल को फेस करना होगा या फिर वो रिटायरमेंट को डिक्लेयर कर दी. अब इसके रिजल्ट्स क्या हुए, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने को मिलती हैं. 7,000 people were dealt with by EBDO. This effectively eliminated many important figures who might have challenged Ayub Khan's rule. इसमें जो हम रिजल्ट्स को देखते हैं EBDO के, तो उसके अंदर डेफिनेटली a positive result was that कि it eliminated the corruption. लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्रिटिक्स हमें दिखाती हैं वो ये है कि जनरल अयूब खान यूज दिस ऑर्डर टू कंट्रोल हिज ओपोनेंट एज वेल. अब जनरल पाकिस्तानी की परसेप्शन इसके बारे में क्या थी, जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं कि पाकिस्तानी सर्टेनली डिसलाइक इट, लेकिन इसके साथ ही साथ दे हैव होप दैट अयूब खान वुड नॉट बी टू रिप्रेसिव एंड वुड प्रिपेयर द वे फॉर अ रिटर्न टू डेमोक्रेसी. इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो कॉमन पाकिस्तानी के पास अयूब खान के हवाले से कॉमन पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम के अंदर रखते हैं. इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिफॉर्म्स की. अयूब खान की रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए उनके टाइम पीरियड को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है.
अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पहले डिस्कस कर लूं कि अयूब खान इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पाकिस्तानी रूलर हु प्लान्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जितने भी हमारे मेगा प्रोजेक्ट जो है अयूब खान के टाइम के अंदर हमें नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम इज आल्सो हाईएस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इसलिए उनका टाइम पीरियड जो है वो एक बेहतरीन टाइम पीरियड्स के अंदर शामिल होता है। सबसे पहले हम जब डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थी? बेसिकली ही स्टार्टेड मेनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये बहुत से हमारे आने वाले रूलर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंस हमें नजर आएगी अयूब खान के प्रोजेक्ट्स की वो ये है कि ही हायर्ड मेनी ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट्स। ये क्यों ऐसा हुआ और उसकी वजह से हमें क्या फायदा हुआ उसको हमें देखना है। बिकॉज ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट जो है दे ऑलवेज मेंटेन देयर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे उनको हमने गिवन टाइम के अंदर अचीव किया। दिस वाज अ सक्सेस ऑफ अयूब खान्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब एक और चीज जो हम यहाँ इसके अंदर पढ़ेंगे कि ही गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एड, लेकिन जो एड है वो किस लिए उन्होंने ली? वो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट है। नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम फॉरेन एड लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमारे डेट्स बढ़ते चले जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम तो कम होती ही है, मगर इसके साथ साथ हमारी रुपये की वैल्यू भी कम हो जाती है क्योंकि हमारे डेट्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अयूब खान की जो प्रोमिनेंट चीज है यानी ही गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एड बट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने उसको गेन किया। इसके साथ ही साथ एक और चीज जो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं की गई थी यानी ही ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स। अब ये इंसेंटिव्स कैसे थे? जैसे कि कंसेशंस इन टैक्सेस, टैक्स हॉलिडे एंड एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। यानी इस तरीके से उन्होंने लोगों को ये मोटिवेट किया कि दे शुड इन्वेस्ट। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्होंने इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे से लिया एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह का इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रू रैपिडली। और इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि इससे पहले जो है ट्रेड ट्रेंड्स को भी अयूब खान ने चेंज किया, यानी अयूब खान की पॉलिसीज ने चेंज किया। कि जब हम इसकी बात करते हैं ना कि मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रैपिडली, इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमारी जो मोस्टली ट्रेड हो रही थी वो रॉ मटेरियल की सूरत में हो रही थी। फॉर एग्जांपल हम रॉ कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, मगर अब हमने इस ट्रेंड को चेंज किया और हम फिनिश गुड्स पे चले गए। फिनिश गुड्स का मतलब ये है कि पहले हम रॉ कॉटन भेजते थे बाहर, अब हमने रेडीमेड गारमेंट्स बनाने शुरू किए क्योंकि हमने इंडस्ट्री स्टार्ट करी। इंडस्ट्री से हमें जो रॉ मटेरियल है उनको हमने फिनिश गुड्स की सूरत में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इससे डेफिनेटली क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर जब मैंने इसका एनालिसिस आपके साथ किया है तो वो ये है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1960 to 65 है इसका टाइम पीरियड, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रू। अब इसका एवरेज क्या थी? अराउंड 11.5%। और इसकी वजह से हमारी जो पीपल इनकम है वो कितनी ग्रू हुई? वो 14% बढ़ गई। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान अचीव्ड अ वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो कि तकरीबन 7% बनता है। दैट वाज थ्राइस दैट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से उस वक्त 3 गुना ज्यादा हमारा जो
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो था। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिगर कि हम इस तरीके से अब हमने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एनालाइज भी कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में फर्स्ट टाइम ही यूज द टर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ज्योग्राफी के अंदर बेटा आप पढ़ चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। बेसिकली यूज ऑफ मैकेनाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि हम ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, HYVs, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, और इसका मकसद क्या होता है? टू गेट मैक्सिमम एग्रीकल्चरल आउटपुट। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से, ही ऑल्सो सॉल्व कैनाल वाटर डिस्प्यूट। ये आपने अर्ली प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि कैनाल वाटर डिस्प्यूट जो है वो पाकिस्तान फेस कर रहा था। इसको भी अयूब खान के टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व किया गया, एंड ही मेड 2 लार्ज डैम्स। अब ये जो डैम्स हैं, ये डैम्स वो हमारे बने हैं, ये अभी भी जो तरबेला और मोटा डैम है, दे आर प्रोवाइडिंग पावर जनरेशन टू द कंट्री, और उनके अंदर उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। यानी स्टिल वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स व्हिच वर लॉन्च्ड ड्यूरिंग जनरल अयूब खान्स टाइम पीरियड। इसके बाद हम सोशल रिफॉर्म्स को देखते हैं, तो अगेन सोशल रिफॉर्म्स भी हमें उनके रेडिकल स्टेप्स नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, ही स्टार्टेड फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है बेटा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ऑल्दो ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द रिलीजियस ग्रुप एंड अदर सेक्ट्स, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा, और इसकी वजह से हमने अपने ग्रोथ रेट लेवल को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने न्यू मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए, और एक और जो रेडिकल स्टेप नजर आता है हमें वो ये है कि ही स्टार्टेड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन। अब ये पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस क्या है? बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही साथ जी बेटा, फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही साथ उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को भी पैरेलल प्रमोट किया, और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था ताकि हम ट्रेन इंडस्ट्रियल फोर्स जो है वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड कर सके। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक और चीज जो हमें नजर आती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं कि ही चेंज द पॉलिटिकल सेटअप। अब सबसे पहले उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर को इशू किया। अब बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर क्या है? बेसिकली इट्स अ 4-tier सिस्टम, यानी 4 लेवल्स उन्होंने बना दिए, जिसके से जहां से कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, और ये जो कैंडिडेट होंगे वो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, और इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये 4 टियर जो है वो क्या है, यानी 4 लेवल्स क्या है, इसके बारे में जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर 1 यूनियन काउंसिल है। ठीक है, ये रूरल एरियाज के में थी, यानी यहाँ से सबसे पहले मेंबर्स इलेक्ट होंगे। टाउन कमिटीज हैं जो कि अर्बन एरियाज में है। नंबर 2 यानी लेवल 2 के ऊपर थाना काउंसिल्स हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान में ये टर्म यूज होती थी, और तहसील काउंसिल जो कि वेस्ट पाकिस्तान में यूज होती थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं,
और अगेन नंबर 4 लेवल के ऊपर डिविजनल काउंसिल. So government, all these councils were headed by government officers at the concerned level, and each of these councils had majority of government members. अब ये जो यहाँ से जितने भी इलेक्टोरल जो हैं यानी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हुए, उनका नंबर जो था वो 80,000 था. और ये 80,000 जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स, ये उनको कहा जाता था बेसिक डेमोक्रेट्स, राइट. इसमें 80,000 को हम डिवाइड करें तो 40,000 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से थे और 40,000 जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए थे. और इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज की सूरत में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने वोट देकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया. सो ये रोल जो है ये उनका नजर आता है. हम इस तरीके से उन्होंने, अयूब खान ने कोशिश की कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो ग्रास रूट लेवल से आनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 4 लेवल्स बनाए. इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि हम सबको पता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज एब्रोगेटेड. तो अब इस वक्त मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. तो जो अयूब खान के टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, दिस वाज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इससे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो क्या है. अब अगेन अगर आपसे ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो मैंने यहाँ आपके लिए कंपाइल किया है. प्रेसिडेंट्स पावर के अंदर could not be removed until impeached. Impeached का मतलब होता है charged with a crime or misconduct, यानी अगर ऐसा हो कि वो he was charged with a crime तो या misconduct, तो तब आप उसको उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं. Number 2, nominated the cabinet from the members of the National Assembly. Sorry. Nominated the heads of judiciary and the provincial councils. Can pass any law and reject laws suggested by National Assembly. इसके अंदर जो restrictions हैं वो क्या है? Restrictions जो है वो ये है कि elected by electoral college of basic democrats, यानी सिर्फ basic democrats had right to elect the president. National Assembly a single house, यानी presidential system के अंदर only a single house. अभी अगर हम presently देखें जो हमारा 1973 का constitution है उसमें we have 2 houses, यानी upper house जिसको हम Senate कहते हैं और lower house जिसको हम National Assembly कहते हैं. मगर presidential system के अंदर there was only 1 house और 5 years time period same है. Provincial Assembly again elected for 5 years. ठीक है. Powers of both assemblies जो हैं can suggest legislation and administer it. और restrictions के अंदर हम देखते हैं कि president must agree to legislations. यानी president की approval के बगैर जो है वो legislation नहीं हो सकती. इसके बाद जो एक और चीज जो prominent चीज है, यानी कि Ayub Khan tried to pacify the Bengalis' demand as well, यानी इस constitution के अंदर both Urdu and Bengali language declared as national language. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो reasons of Ayub Khan's loss of power है
यानी अयूब खान को क्यों अपने रूल को छोड़ना पड़ा, इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले जो रीजन हमारे सामने आती है वो अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ दिस रेजिम है, क्योंकि इसी के अगेंस्ट सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने एक अलायंस बना लिया था और इस अलायंस को कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज का नाम दिया था, ठीक है। और इसको सपोर्ट कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर फातिमा जिन्ना वाज द कैंडिडेट अगेंस्ट प्रेसिडेंट अयूब खान। ये हम सेकेंड रीजन के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ उसके अंदर he charged rigging in elections. थर्ड रीजन जो है उसके अंदर हमें जो चीज नजर आती है वो ये है कि different critics also charge him that the concentration of wealth in a few hands. और इसके लिए जो स्टेटिस्टिक यहाँ पर हमने यूज किए हैं कि 80% of the banking, over 90% of the insurance capital, and over 60% of the entire industrial capital was in the hands of only 22 families. नंबर 4 जो हमें चीज नजर आती है रीजन ऑफ डाउनफॉल के अंदर वो हम उनकी लेबर पॉलिसीज हैं, बिकॉज ही बैंड लेबर यूनियंस, जिसकी वजह से पीपल बिकेम अगेंस्ट हिम और ZA Bhutto launched a popular movement to help the laborers. इसीलिए he became a very popular leader as well. So this was another setback for Ayub Khan. Lastly जो हम देखते हैं कि most important reason वो 1965 war है, यानी in 1965 war जो है इसके अंदर when Pakistan signed Tashkent Declaration without any solution to Kashmir issue, तो इसकी वजह से अयूब खान faced a bitter opposition from Pakistanis as well. क्योंकि इन लोगों का ख्याल ये था कि what the army had gained in the battlefield we have surrendered at Tashkent. और इसको ZA Bhutto जो कि अयूब खान के टाइम पीरियड के अंदर एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम कर रहे थे, he resigned from his office and he also lead a movement against Ayub Khan, which eventually brought later downfall in 1965. So इस तरह से मैंने आपको एक रिव्यू दिया है जो कि जनरल अयूब खान के टाइम पीरियड का था, ठीक है बेटा। तो इसमें जो हम क्वेश्चन यानी 4 मार्क क्वेश्चन इस के लेसन को देखते हुए आप अटेम्प्ट कर सकती हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 आप प्लीज राइट इन योर कॉपी, मैं ये आपका गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर दूंगी। आप यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग 4 मार्क क्वेश्चन। So your homework is who was General Ayub Khan, 4 marks, question 1. Right? Question 2 I'm taking from Abdo. What was Abdo or describe Abdo? First question क्या है? Who was General Ayub Khan? Who was General Ayub Khan? और 2 में नंबर 2 जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डिस्क्राइब एब्डो, अगेन 4 मार्क। एंड नंबर 3 क्वेश्चन डिस्क्राइब बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर, अगेन 4 मार्क। Basic democracies order, right? Again you can use this information for answering 4 mark question. ठीक है बेटा।
सो आज का लेसन मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ एग्जाम क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल अयूब खान आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। आज के लिए, आज के लेसन के लिए इतना ही।